Hello student, class 11 physics. In continuation with my previous videos, chapter 2 units and measurements. We have started the error, the combination of error. In the combination of error, in the previous video we have done error of sum and error of difference. These two topics we already have done. Today's topic is error of product and error of quotient. Let's start. Now error of product or a quotient. Now suppose we have a physical quantity which comes after multiplication of two physical quantity. Now the measured value of physical quantity A and B are A is equal to A plus minus delta A, and for B is equal to A plus minus delta B. B प्लस माइनस डेल्टा बी मीन्स आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इनके प्रोडक्ट से किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आते. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द एरिया लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लिकेशन से आते. तो लेट्स टेक दिस क्वांटिटी विच इज गेटिंग आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, एंड ए के अंदर जो आपका मेजर्ड वैल्यू आ रही है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दैट इज योर विद प्लस माइनस एरर, एंड बी इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब बी की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी के एरर के साथ मेजर्ड करते हैं. नाउ विच इम्प्लाइज दैट z के अंदर भी जब अब a और b के अंदर एरर है, दैट मीन्स z के अंदर भी आपका कुछ ना कुछ एरर मस्ट बी देयर. सो अकॉर्डिंग टू दिस z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b plus minus delta b. Now just open this bracket a multiply by this bracket ab plus minus a multiply by, I'm just opening the bracket. Now just see these two quantities, multiplication of two errors. These can be ignored. These are, since delta A and delta B are very small, बिकॉज कुछ हो सकता है डेसिमल में आ रहा हो, ये भी कुछ डेसिमल में आ रहा है, तो प्रोडक्ट इनका और डेसिमल में हो जाएगा. दैट मीन इनका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा. दैट इज वाई देयरफॉर वी शैल इग्नोर द प्रोडक्ट. इस क्वांटिटी को वी आर गोइंग टू इग्नोर इट. नाउ फ्रॉम दिस क्वांटिटी आई एम जस्ट गोइंग टू टेक z कॉमन. तो z कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z विल बी कमिंग हियर, एंड यहाँ से मैं ए बी कॉमन ले रही हूँ. तो ए बी कॉमन लेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए विल बी लेफ्ट, एंड इग्नोरिंग दिस क्वांटिटी. इसको हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज इनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आएगा. नाउ हियर a प्लस बी इज योर z ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो ये भी आपका z हो गया. प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, and here 1 plus, cancel out this equation. Here you are getting 1 plus delta z is equal to 1 plus minus delta b upon b plus minus delta a upon a. Again 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा z, सॉरी यहाँ पर इफ़ यू आर टेकिंग तो z यहाँ पर आएगा, z अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो
delta z upon z is equal to delta a upon a plus minus delta b upon b. This will be your result. So hence rule क्या रहेगा अब आपका? What is the rule? When two quantities are multiplied or divide, the relative errors in the result is the sum of the relative errors in the multipliers. So whatever will be the result, आपका ये मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में. फॉर एग्जांपल डिवीजन का मैं आपको बताती हूँ. फॉर डिवीजन लेट्स टेक एन एग्जांपल. z इज इक्वल टू a अपॉन b आता है. इन द सेम मैनर जैसे अभी हमने इसका करा, वी कैन डू इट विद द z अप फॉर द डिवीजन ऑल्सो. द रिजल्ट जो रहेगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. This is for quotient. This is for the result for product, and this result for quotient or for division. कुछ भी आप कह सकते. तो here we are, if any of the quantity, whether it is in a product form, z is equal to a upon b, like area, or we can say that the volume, it can be multiplied by 3 1 also. So the result will be the relative error in the resultant is equal to the relative error in the product. You have to add them. Same if the resulting if the question is about the division or the division or the quotient, the result will be relative error in the resultant is equal to the sum of relative error in each quantity. इनका आपने sum करना है. We can prove the result in the same manner that we have done in this derivation. So for the numerical you have to understand कि ये फॉर्मूला कहाँ से आए हैं दोनों. ये आपको सिर्फ डेरिवेशन करके बताया गया है. बट when we do the numericals, we are not doing these steps. We only use the formula as it is directly. Let's understand these things with the help of some examples. Now the formula that we are using for error in product is, if a physical quantity which comes with the multiplication of two other physical quantities, the formula will be the error in relative error in z is equal to plus minus sum of the relative error in the individual physical quantity, that is delta a upon a plus delta b upon b. This is formula for we are using for the product. And the error in quotient, if a physical quantity comes by division of 2, let's take an example of density. Density will come by the division of two other physical quantity, that is mass upon volume. तो यहाँ पर आपका जो result है relative error in the density z upon z, delta z is equal to plus minus addition of other two physical quantities. चाहे आपका प्रोडक्ट हो या आपका क्वोशिएंट हो, दोनों ही केस में जब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे तो यहाँ पे एडिशन होगा. Relative error of individual quantity. Let's take an example. The length and the breadth of a rectangle is 5.7 plus minus 0.1 centimeter और breadth है आपकी 3.4 plus minus 0.2 centimeters. Calculate the area. We have to calculate the area of a rectangle with
एरर लिमिट के साथ हमने यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो सोल्यूशन में हेयर L इज इक्वल टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स दे रखा है एंड योर ब्रेथ इज गिवन 3.4 plus minus 0.2 centimeters. Now you already know that area किसके इक्वल होता है? L into B. That means here we are calculating the figures without the error limits. तो यहाँ पे इसमें जो लेंथ है that is without the error limits में that is 5.7 multiply by 3.4 ब्रेथ ये है विदाउट द एरर। अभी हम एरर को सेपरेट कर रहे हैं। द रिजल्ट विल बी कमिंग 19 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका ए निकल कर आया है 19 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ऑलरेडी नो, अगर हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूले दिस में, अगर आप लगाते एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज है, तो रिजल्ट क्या आएगा? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों का एडिशन, रिलेटिव एरर इन दोनों का ऐड। नाउ अप्लाई द वैल्यूज। वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया, आपने ये निकाल लिया है। डेल्टा एल आपके पास है दिस, एल आपके पास है दिस, डेल्टा बी आपके पास है और बी आपके पास है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा ए, आपको निकालना है बिकॉज आपने जो फॉर्मूला निकालना है, आप बाय अप्लाइंग दिस इन दिस, तो आपको डेल्टा ए नहीं मालूम, आपको ओनली एरिया पता है। यू डोंट नो द रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, आपको नहीं मालूम है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड द डेल्टा ए। तो डेल्टा ए मेरे पास नहीं है, एरिया मेरे पास है जो मैंने अभी सॉल्व किया। जस्ट पुट इट 19 हियर प्लस माइनस डेल्टा एल इज योर 0.01, sorry 0.1 upon L is your 5.7 from the question only, plus delta B is 0.2 upon delta B is 3.4। अब आप इसमें अपने हिसाब से एलसीएम हम सॉल्व करेंगे इसको। जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट, इट विल कम, some value will become, that is your answer will be 1.48 upon 19.38। after solving this you will get this value। maybe decimal में फर्क आ सकता है but you can do it round off, you can do that। so and delta A upon area is your 19। मल्टीप्लाई है डेल्टा ए इज इक्वल टू 14.48 multiplied by 19.38। when you solve this equation, this is about 19, ये 19.38 है। if you take at this is before the rounding off, before that the value जो actual value आपकी आएगी after calculating is 0.38 टाइप की वैल्यू आएगी। तो we just write over here only 38। this is round of 19 आ रहा है but actual value is 19.38। तो वही वैल्यू आपने रखनी है 19.38। तो इससे ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डेल्टा ए आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1.48 और यू कैन अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। नाउ द एरिया, द फाइनल एरिया विल बी योर, क्या होना चाहिए था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए।
ये आपका एरिया होना चाहिए। तो आपका जो एरिया निकल कर आएगा, ए की वैल्यू कितनी आपकी निकाली है, दैट इज़ योर 19.38। इसको राउंड ऑफ करके यू कैन राइट 19। तो 19 हम लिखेंगे, प्लस माइनस अगर आप 19.38 भी लिख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं रहेगा, दैट इज़ ओके। एंड एरर इज़ योर राउंड ऑफ करके करना है 15.5। एंड रिमेंबर दैट एंड में आपने यूनिट्स ज़रूर लगानी है। अगर आप यूनिट्स नहीं लगाएंगे तो योर आंसर में आपके 5.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो रिमेंबर दिस, ये आपने यूनिट्स ज़रूर लगानी है। Now I'm going to take the next example, that is NCERT का 9.2.9 NCERT का न्यूमेरिकल है, ये सॉल्ड एग्जाम्पल है ये। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इज इक्वल टू V अपॉन I गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 वोल्ट एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। इसका परसेंटेज एरर निकालना है अब आपको। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन के लिए आपने को फिजिकल क्वांटिटी R निकालनी है, विच इज कम आफ्टर द डिवीजन ऑफ दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट वन, वी आर यूजिंग द क्वेश्चन वन। सो द रिजल्टेंट क्या रहेगा, डेल्टा जेड अपॉन relative error in the physical quantity z is equal to plus minus addition of sum of relative error in each quantity। तो ये हम अप्लाई करेंगे। नाउ v आपका सोल्यूशन में, लेट्स डू द सोल्यूशन। v आपका गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड i आपका गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। क्लियर? नो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I गिवन है। समटाइम द फॉर्मूला इज गिवन, समटाइम इट इज नॉट गिवन, बट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। तो V कितना है यहाँ पर, ओनली द वी आर नॉट टेकिंग द एरर वैल्यू, वी आर टेकिंग द मीन वैल्यू, दैट इज 100 अपॉन 10। तो इट विल कम 10 ohms। R आपका निकल कर आया 10 ohms। ठीक है ना। अप्लाइंग द फॉर्मूला, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। अप्लाइंग द एरर इन क्वेश्चन रूल आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। नाउ डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V कितना है 5 फ्रॉम द क्वेश्चन अपॉन वैल्यू इज योर 100 प्लस डेल्टा I आपका 0.2 अपॉन I इज 10। इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका जो रिजल्ट आएगा इट विल कम 7 अपॉन 100। ठीक है, एंड दिस 7 अपॉन 100 बिकॉज यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालेंगे, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन R, रिलेटिव एरर इन R विल बी इज योर प्लस माइनस 7 अपॉन 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो योर आंसर विल बी प्लस माइनस 7%। तो आपका रिलेटिव एरर इन R जो निकल कर आएगा इस केस में, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द परसेंटेज एरर। अगर उन्होंने सिर्फ विद एरर लिमिट्स कर रहा होता तो आपका विद, अगर सिर्फ एरर लिमिट्स निकालना है तो आपने यू हैव टू कैलकुलेट द R निकालना था। तो R इज R प्लस डेल्टा R आपको करना था, तब आपका आंसर आता R इज योर, यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 10 प्लस माइनस डेल्टा R इज योर दिस इज योर अप्रॉक्सीमेटली कम्स टू 0.07 आ जाता। ठीक है, तो दिस इज 0.07 ohms। अगर वो सिर्फ एरर लिमिट्स पूछता तो ये आया। अब क्वेश्चन में रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना था, तो रिलेटिव परसेंट, इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 100 करा एंड योर आंसर विल बी 7%। उसने सिर्फ फाइंड द परसेंटेज एरर इन R सिर्फ यही पूछा था, तो आंसर आपका ये। अगर पूछता फाइंड द R विद लिमिट्स,
तो आपने ये वाला स्टेप करना होता. So according to the requirement of the question, you have to follow the steps. For more practice, go through the ERP to get the assignment, and please complete the assignment in your loose sheet or the rough notebook. Thank you.